इससे बगल है तीसरा। हाँ ये हेलो हेलो ओके डॉक्टर कालिया ओके yeah I'm okay. you are okay you can start now. Okay. Very good morning to one and all. We are extremely sorry that we are late from the session due to some technical errors. I, Abhishek Kalia, Assistant Professor, BUAT, extend hearty and cordial welcome to all the distinguished scientists, participants, and guests in today's webinar on organic farming, a sustainable way of ensuring livelihoods and meeting global demands, organized by Banda University of Agriculture and Technology, Banda, Uttar Pradesh. Now, I cordially invite Dr. Nareen Singh, Associate Director Extension and Chairman of this webinar for his welcome address. Over to you, sir. Okay, thank you, Dr. Abhishek. I, on behalf of Banda Agriculture University, Banda, who is going to host this 2 days seminar on the organic aspect, I welcome all the stakeholder participants from the different part of the country and the states. This organic seminar is aimed for a beautiful scenario to encourage the productivity, production and marketing network of the organic. Dear sir, I again welcome especially our Honorable Vice Chancellor to enthusiasm to us, encourage to us to develop and show this type of seminar on the base theme of organic, which is a need of today. In other parts, I also welcome all the delegates, especially the speakers from and the farmers who are engaged in organic farming development as well as the production. Dear sir, this organic webinar is aimed with the few specific objectives. First of all, bring all the stakeholders in a single platform to interact each other. Second, the platform will be used to discuss the need of organic life in present scenario of COVID-19. Third, assess and explore the possibilities of organic demand and supply in global scenario. The most important, the dissemination of latest technologies and practical approaches with the help of our key speakers from different parts. Out of them, Dr. A. Yadav from Pantnagar University, Padma Shri Bharat Bhushan Tyagi ji, Dr. D.K. Singh ji, Professor of Agronomy, Mr. Vinod Lahoti, CMD, Geolife Agriculture, Agritech, Dr. Mayank Kumar Rai, and Dr. Dev Singh. In the speakers, we have tried to infuse all scientists as well as the practical ambassador of organic farming. This 2 days organic webinar will certainly prove a mile to establish the organic life in our day-to-day life. Dear sir, during my address, welcome all of you. It's my heartily pleasure to welcome all the delegates, especially the farmers who are participating in this 2 days webinar, the entrepreneur, few of the entrepreneurs who are taking the part in 2 days organic seminar, students which are as a great life and chances to explore, establish this organic concept in the field. So dear sir, in nutshell, I again welcome all the delegates, all the participants and all the key speakers in this. Especially once again, I thank our beloved Honorable Vice Chancellor, Dr. U.S. Gautam ji, for creating this platform,
to disseminate our thought to all of you. Thank you very much, and I hope all of you will enjoy in technically as well as the practical approach of organic farming in these 2 days. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your address. Now it's an honor to invite a person with the dynamic vision under whose leadership Banda University of Agriculture Technology has reached new heights in teaching, research and extension just in a year and a half. His name is one of the successful signatures in Indian agriculture. May I take this privilege to invite Dr. U.S. Gautam, Honorable Vice Chancellor, Banda University of Agriculture and Technology, for his keynote address. Please welcome, please sir, over to you sir. Thank you, Dr. Kalia. Good morning to all delegates. Warm welcome on the behalf of Banda University of Agriculture Technology and on the behalf of my personal to welcome all delegates. As you know, this webinar outcome of our dynamic leadership, our Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and Honorable Agriculture Minister Shri Suraj Pratap Shahi ji and Manvent Pratap Singh, who is Chairman of Bundelkhand Development Board, and the Kamlesh Kumar ji, ACS, Additional Chief Secretary, Planning Uttar Pradesh. They given the responsibility to this university, and university organized 2-day national conference on 10th 11 January 2020. This webinar outcome of that national conference, and I congratulate to our organizing committee for organizing this organic farming, a sustainable way of ensuring livelihood and meeting global demand. I also welcome to our esteemed speakers. They are very renowned speakers. Dr. D.K. Singh, Padam Shri Awardee Farmers, Shri Bharat Bhushan Tyagi ji, Dr. Ashok Kumar Yadav ji, Mr. Vinod Lohati ji, Dr. Mayank Kumar Rai, Dr. Dev Kumar, Progressive Farmers, and other farmers who is involved for this organic farming. I also welcome to the dear students, esteemed delegates, and especially for the farmers. I received several comments from the farmers. They requesting me to speak in Hindi. So I just take opportunity and to all of our and we have a participant, I can speak bilingual English and Hindi so that our farmers can understand what we wanted to implement during this 2-day national webinar for sustainable way of ensuring livelihood and meeting global demands. I also welcome all dean directors, staff of the BUAT, who is taking a lot of pain for last 1 week to organizing this webinar. So dear friends, जैसा किसानों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, क्योंकि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो किसान हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तो मैं उनका भी बांदा विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं और हम उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार में वो भाग लेंगे और भाग लेने के बाद उनका जो आउटकम होगा वह निश्चित तौर पर ग्लोबल लेवल में भारत का भागीदारी बढ़ेगी। जैसा आप जानते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादनों का निर्यात
से ले लो फोटो जो है। इंटरप्ट हो जा रहा है। उत्पादन का नारा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध व असंतुलित उपयोग प्रारंभ हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उत्पादकता में स्थिरता आने के कारण पूर्व वर्षों में उत्पादन वृद्धि पर असर पड़ने लगा। पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग का प्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि इसका कुप्रभाव पानी, भूमि, पर्यावरण पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से हमारा सॉइल हेल्थ डिग्रेड कर गया, हमारा पानी जो है वाटर कंटामिनेशन हुआ जो है, और इसके साथ साथ हमारे हेल्थ के ऊपर, जो ह्यूमन बीइंग हेल्थ है, उनके ऊपर से कितना प्रभाव पड़ा। जैसा आप जानते हैं कि मिट्टी पौधों के वृद्धि एवं विकास का माध्यम है। पौधों के समुचित विकास एवं फसल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद एवं उर्वरा होना नितांत आवश्यकता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का परिकल्पना को साकार करने पर जोर दिया है। इससे भारतवर्ष कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में स्वावलंबी बन सके। जैविक कृषि रासायनिक उर्वरकों से दूर हमें आत्मनिर्भर स्वावलंबी एक अच्छा माध्यम है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो लोकल टू ग्लोबल, हम जो प्रोड्यूस करें गांव में, हम जो प्रोड्यूस करें शहर में, उसको हम कैसे जो है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको लेकर के हमारा किसान, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। भारतवर्ष में आप जानते हैं कि सिक्किम प्रदेश ऐसा है जो पूर्ण से जैविक घोषित कर दिया गया है। कतई प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर जिला को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक जिला घोषित किया हुआ है, और उसका प्लान बना करके जैविक आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इससे और उसमें जो उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है वो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के रूप में मनाया जा रहा है। जैव विविधता खेती की जैविक पद्धति से साफ परिलक्षित होती है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाना तथा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए खेती की यह पद्धति हर तरह से अनुकूल है। इसीलिए आज का दिन हमने इसको चुना था कि आज कैसे हम अपने पर्यावरण को जो है हम प्रोटेक्ट करें, कैसे पर्यावरण के अंदर रहने वाले लोगों को जो है हम शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण प्रोवाइड कर सके। जैसा आप जानते हैं कि भारत 31 मार्च 2018 तक जैविक खेती का कुल क्षेत्र 3.56 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें लगभग 1.7 हेक्टेयर कुल कृषि योग्य तथा शेष 1.78 हेक्टेयर जंगली वन संग्रह है। भारतवर्ष में जैसा आपको पता है कि लगभग सभी राज्यों में ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उसके बाद उत्तर प्रदेश क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर आते हैं। सिक्किम में 76,000 हेक्टेयर भूमि का जैविक खेती की जाती है और इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। आप जानते हैं कि जो हमारी एजेंसी अपेडा के अनुसार भारतवर्ष में 2018 में 1.7 मिलियन मैट्रिक टन जैविक उत्पादन तैयार हुआ। इससे मुख्य रूप से तिलहन, गन्ना, अनाज, मोटे अनाज, कपास, दलहन, औषधि पौधे, चाय, फल, मसाले, सूखे मेवे, सब्जियां इत्यादि मुख्य उत्पादन है। वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादन की मांग ज्यादा है। भारत में अमेरिका, यूरोप, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अन्य देशों को जैविक उत्पादन निर्यात किया गया है। निर्यात किए गए उत्पादन में लगभग 47.6 प्रति तिलहन, 10.4 अनाज, मोटे अनाज, 8.96% चाय एवं कॉफी, 8.88% सूखे मेवे, 7.78% मसाले हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत का कॉफी, भारत का टी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
हम जानते हैं कि जैविक खेती के बारे में लोग बात करते हैं। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषण तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैवनाशी, बायो पेस्टिसाइड व बायो एजेंट जैसे ट्राइकोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता तथा कृषि लागत घटने व उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने से कृषकों को अधिक लाभ मिलता है। जानते हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। हम पहली बात आज कहें कि आज हमारा जो है एनवायरमेंट डे है, तो सबसे पहला इसका जो सिद्धांत है, प्रकृति ही धरोहर है, प्रत्येक जीव के लिए मृदा ही सूत्र है। हमें मृदा का पोषण देना है, न कि पौधों को जिसे हम उगाना चाहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने वाली लागत में पूर्ण स्वतंत्रता, परिस्थितियों की पुनरुद्धार करना, ये हमारी जो है मुख्य बातें हैं। जैविक खेती के जो उद्देश्य है इसका, इस प्रकार की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न हो तथा इसके स्थान पर जैविक उत्पादन का उपयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तुरंत उत्पादन में कमी न हो, अतः इसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रति वर्ष चरणों में कम करते हुए जैविक उत्पादनों को ही प्रोत्साहित करना है। जैविक खेती का प्रारूप निम्नलिखित प्रमुख क्रियाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कार्बनिक खादों का उपयोग, जीवाणु खादों का प्रयोग, फसल अवशेषों का उचित प्रयोग। आप जानते हैं कि फसल अवशेषों को मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार कितना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। हम उनका पूरा उपयोग कर सकते हैं जैविक में। जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग का नियंत्रण, फसल चक्र में दलहनी फसलों का अपनाना। आप जानते हैं कि दलहनी फसल को अगर हम लगाते हैं तो उनके जड़ों में जो है ऐसी बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है और खेत की जो है उर्वरकता बढ़ जाती है, मृदा संरक्षण क्रियाएं, ये जो है वो प्रमुख है। इसमें जो हम महत्वपूर्ण बातें की बात करते हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति में टिकाऊ, जैविक खेती प्रदूषण रहित होता है, कम पानी की आवश्यकता, पशुओं का अधिक महत्व। आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले से ही पशु पक्षी वन वाटिका हम लोग सब करते थे, खेती बाड़ी पशु पक्षी, मतलब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग का हुआ करता था, जिसमें हम लोग जो है खेत के साथ साथ पशु को, पक्षियों को, बागवानी को, संपूर्ण क्षेत्र में उसका महत्व होता था। उसी की बात आज हम फिर कर रहे हैं कि अगर हम कैसे जो है कृत्रिम जीव सुरक्षित की संख्या में बढ़ोतरी करें, स्वास्थ्य में सुधार, लागत में कमी करें और उसका जो लाभांश है उसको हम कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं, ये सारी बातों को हम जो है उसमें परिचित करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम बात करते हैं इसमें बुंदेलखंड की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह है कि मीटिंग ग्लोबल डिमांड। अगर आप विश्व के तरफ देखें तो आज के डेट में जो हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, FIDL ने सर्वे किया है 2019 में, जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड इन्होंने जो इंडिकेटर्स दिया हुआ है उसमें इन्होंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 69.8 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक फार्म लैंड पर खेती की जाती है, जो 2016 से 20% ज्यादा है। मतलब आप इससे देख सकते हो कि कितनी डिमांड जो है इसकी बढ़ रही है। और इसमें जो है टॉप 3 कंट्री लैंड इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, सबसे ज्यादा है 35.6 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है 3.4 और तीसरे नंबर पर चाइना है। अगर आप इसको देखें तो कितना ह्यूज गैप है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 35.6 है, उसके बाद अर्जेंटीना और चाइना 3 है नंबर। आप जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अगर अब हम बात प्रोड्यूसर ही करें जो है, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में है। 8,35,000 ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया में, इंडिया फर्स्ट है। दूसरे नंबर पर उगांडा है और तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें कि ग्लोबल मार्केट ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड किस तरह से बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है आती है चेकोस्लोवाकिया की, उसके बाद जो है डेनमार्क की, फिर फ्रांस की। इस तरह से जो है आप देखिए किस तरह से लोगों का जो है डिमांड आ रहा है, और उसके अनुसार जो है हमें अपनी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा
कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा है, उसके बाद इतना गैप है, कहाँ कहाँ से हम इसको भरपाई करें। अगर हम बात करें रिटेलर सेल की और एक्सपोर्ट की, तो हमारा 186 मिलियन यूरो का हम जो है रिटेल सेल करते हैं और एक्सपोर्ट जो है 582 मिलियन यूरो का करते हैं। बहुत स्कोप है हमारे पास, बहुत कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को अपने पास करके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें लगा करके और हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभी 10 कंट्री ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक के लिए 2017 में जो इंक्रीजिंग ट्रेंड जिसका आ रहा है, जो ऐसे 10 कंट्री का नाम हम बताते हैं जिसमें 8वें नंबर पर भारत है। सबसे पहले जो बताया आपने, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, स्पेन, यूएसए, इटली, उरुग्वे, उसके बाद इंडिया है, फिर फ्रांस है और फिर जर्मनी है। तो इसका मतलब इंडिया में एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन एरिया के साथ साथ जो है हमारा उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर हमें देखना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 2017 में जो है हमने जो ये जो सर्वे अभी 19 में किया गया हुआ है, इसमें आप पिछले 2 साल में हमारा 2,90,000 एरिया हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ा हुआ है। पूरे देश में हम बात अगर करें जो है, तो अगर आप देखें इसमें कि कितना स्कोप ग्लोबल लेवल पर है, अगर हम इसको कार्य से इसको अगर हम देखते हैं, और इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे पास सबसे पहले बात लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्योर की कमी है। अगर आप डेटा देखें जो है, तो हमारे कंट्री में और कंट्री है 700 ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड, बट मोस्ट इतना ह्यूज अमाउंट हमारा वेस्ट है। अगर हम इसकी प्लानिंग करें, क्या हम जो है, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैन्योर की जो कमी है या फाइन कमी है, हम इसे पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर we have collected some data from the different sources and we found lack of market facility 3.7%. See, this is a very bottleneck, the market facility. Then second, non-availability of premium price. Still people are not seeing the importance of organic. So the second concept, non-availability of premium pipe. And third, difficulty to control weed, pest and available diseases. These are the important aspects where we think how we can overcome the weed, pest and disease management. And limited availability of organic manure. See, this is also important, 31.34%. How we can manage this availability? How I can ensure about availability of organic manure for management of the waste material, 700 metric ton waste agriculture waste material. And definitely there are some points developing organic farming for optimization of productivity. All essential components needed to be developed in a systematic manner. Some of the steps: habitat development, on-farm facilities for input production, cropping sequence and conventional planning, 3-4 years related to the plan, growing of the crop suitable in the region, soil and climate. This is a very important aspect. Region, climate and soil. On the basis of region, on the basis of soil and on the basis of climate, framework of the planning of the manuring. And we also collected some data from the FIVL survey. We found that apart from the land dedicated to organic agriculture, there are further area of organic land dedicated to other activities. The largest part of these are wild collection area, area of beekeeping, further non-agricultural area including aquaculture, forest and grazing area on non-agricultural land. These area totally 42.4 million hectares and all the organic area together
sum up of 112.3 million hectares. It should be noted that many countries do not report non-agriculture organic area. We can therefore sum up that the data of some other area were incomplete, in particular the data of aquaculture and forest. For organic aquaculture and beekeeping, the indicators, production and number of beehives are more relevant than the area, and the significance of organic aquaculture and beekeeping cannot be measured in the area. So the total area out of 37% area under the wild connection. And these areas we can change, we can convert into organic farm. So this is the future area, and you see beekeeping, aquaculture. These are the potential area where we originally we are doing. किसान शुरू से जो है, आप अगर बिहार की बात करें तो देखिए वहां पर कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं। आप अगर बुंदेलखंड की बात करें तो कैसे मछली पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब ऐसा एरिया है जहां पर हम ऑर्गेनिक चीजें कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ग्लोबल की चर्चाएं हमने किया, हमने राज्यों की चर्चा किया, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो आउटकम हमारा था कॉन्फ्रेंस का कि बुंदेलखंड जैविक कॉरिडोर, जिसमें हम पूरे बुंदेलखंड को लेकर के चलने की बात करते हैं। और उसमें बादा कृषि विश्वविद्यालय की जो टीम है वह पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट और विलेज का सिलेक्शन किया है, और हर विलेज के साथ सर्वे मेरा कंप्लीट, मैं 2019 में शुरू किया हूँ। मेरा सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सर्वे कंप्लीट होने के बाद हम सभी किसानों के एमयू साइन करेंगे, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करेंगे, सर्टिफिकेशन हम करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है लोकल टू ग्लोबल, आप बुंदेलखंड में 80 घंटाएं हैं। अगर आप मिलेट की बात करें तो वो डिफॉल्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है हमारे बुंदेलखंड का जो है, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम प्रोसेसिंग करें, उसको जो है पैकेजिंग करें, फिर उसको मार्केटिंग करें। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है एरिड जोन की जो फलें हैं उनकी बहुत ज्यादा संभावना है। नींबू प्रजाति के फलों का जो है उसको कैसे हम प्रोसेसिंग करके ज्यादा से ज्यादा हम उसको पैकेजिंग करें और उसको मार्केटिंग मिल रहा है। तो जो लोकल टू ग्लोबल की बात है। और आपको बता दें कि बुंदेलखंड में जो है रूरल यूथ का जो है करीब 50 to 5% जो है सीजनल माइग्रेशन होता है, और कोविड-19 में सारे लोग जो है अपने बाहर के शहरों से गांव में आ गए हैं। हमें गांव को खुशहाल बनाने के लिए, गांव को जो है किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको अगर हम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो कर्तव्य, गांधी जी कहा करते थे गांव में बसता है, तो आज वह सपना पूरा करने का समय आ गया है। और अमित जैविक कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड के या पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान करते हैं कि जैविक खेती को अपनाएं, जिससे उनका इनकम बढ़े, हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हम स्वस्थ रहें। पुनः इस वेबिनार 2 दिन के वेबिनार में हम आप सभी लोग का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के सेमिनार में कुछ बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आएंगी, जिसको हम लोग जो है जमीन पर प्रयोग करके उसका फायदा किसानों को देंगे। हम और जो भी हमारे बुंदेलखंड से बाहर के भी हैं, वो जो भी हमारे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। बुंदेलखंड बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम बना रहा है जिसमें किसानों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ किसानों को ट्रेनिंग देंगे। अगर जरूरत पड़े तो उनका प्रोजेक्ट बनवा करके निवाड़ से या और बैंकों से हम लिंकेज करा करके अपनी एक जो है इंडस्ट्री या अपनी एक प्रोडक्शन, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के मिलाकर बनाना हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हो, चाहे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हो, इस तरह से हम कोऑपरेटिव बना करके जो है निश्चित तौर पर हम अपने जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री ने दिया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, इसको बादा कृषि विश्वविद्यालय उसको पूरा करेगा। और इसमें जिस तरह की भी हेल्प किसानों को होगी, हमारा द्वार उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। हम उनका हमेशा स्वागत करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for your words.
Your lecture is always full of knowledge and updated with the recent data. And of course, it's a source of inspiration for all of us. We all are witness of your efforts you did for the betterment of the Bundelkhand farming community. Thank you so much, sir. So, now we are proceeding towards our first session that will be taken by Dr. D.K. Singh, Professor Agronomy and Chief General Manager of Farms GBPUAT Pantnagar. Sir is a very well-known personality who has done a lot of research and work for the betterment and promoting the organic cultivation in India. So may I request Dr. Umesh Chandra to please connect Dr. D.K. Singh, sir. Over to you, sir. Hello. Dr. Kalia. Dr. D.K. Singh sir is already connected. Okay. Good morning, sir. Good morning. Hello. Welcome, sir. I'm at, yeah. Where we can share a screen? Hello? Yeah, Doctor. Now you can share your screen, sir. Yeah, it's visible. Sir, please share your screen. Audio उपलब्ध नहीं है. I'm not getting where. Sir, please share your screen, sir. Yes, sir. The screen is visible now, sir. Yeah, it's Yes, visible sir. now. Yes, sir. Your screen is visible now. Hello? Yes, sir. Your screen is visible now, sir. Yeah. Good morning, everybody. I'm Edwin. Hello. Yes, sir. You are here, audible, sir. Good morning, everybody. Honorable Vice Chancellor, sir, and organizers, dear friends, everybody who is involved in this webinar lecture, and किसान भाइयों, किसान भी शायद हैं, मैंने सुना जैसा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का ऑर्गेनिक फार्मिंग सर अगर हम देखें तो एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वी हैव सेवरल चैलेंजेस post green revolution and early green revolution and early post green revolution we have a challenge. Yeah, is it okay? Hello? Yes, sir. It's all right, sir. Yeah. So there was a challenge in early green revolution, early post green revolution, and pre-green revolution. The challenge was that to feed the nation, food security was there. But nowadays the challenge is that sustainably feed the nation. That is the biggest challenge. And in sustainably feed the nation, economic sustainability, soil sustainability, production sustainability. That's the biggest challenge. And soil sustainability is, and economic sustainability is this one the biggest challenge for scientific community as well as for the farmers also. So organic farming is one of the option. जैविक खेती एक ऑप्शन है
कि इसको बढ़ावा देके और इस जैविक खेती करके हम एक सस्टेनेबिलिटी और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको फुलफिल कर सकते हैं. But in organic farming, that we can go for organic farming with some strategies. Strategies is that we are not saying that the organic farming should be in the whole country. Go for organic farming. It should be go for some strategies. The strategy first one is the rain-fed area where the productivity is very low. And these are actually NCAP has also surveyed that the 1/3 area where the productivity is very less. Even the food grain productivity is less than 1 ton per hectare in that area, and some of the area where the fertilizer consumption is very less. In that area, there is also scope for very good scope for organic farming. जहाँ पे फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत कम होता है. अगर आप देखें तो 1/3 ऐसी एरिया है जहाँ पे फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत कम होता है. जैसे कि पहाड़ की एरिया है, फुट हिल है और पहाड़ है, वैली है, इन सब पे बहुत फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत कम है. इन सब एरिया में जैविक खेती बहुत आसानी से की जा सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से की जा सकती है. इसके अलावा सम निश क्रॉप, द क्रॉप विच इज डिमांड ऑर्गेनिकली, से फॉर द बासमती राइस जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको ऑर्गेनिक में किया जा सकता है. कार्डेमम्स हैं, स्पाइसेस हैं, टी है, कॉफी है, और ऑनरेबल वाइस चांसलर हैज ऑलरेडी टोल्ड इन दिस क्रॉप्स, इनमें ऑर्गेनिक डिमांड, ऑर्गेनिक कमोडिटी डिमांड इन दिस crop that's very high, so this crop can also be considered. If we see the world scenario nowadays, 170 countries they are producing involved in the production of organic farming. Out of that, highest area is in Australia. India is only nowadays 1.7 million hectare only, but the number of producers are very high. It's in first in the world in India. More than 6 lakh producers are there. So the first time we are going to start my actual, this was the introductory things, and अब मैं start एक जनरल मिथ ये है किसान भाइयों के लिए भी और सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, that the in organic farming productivity is less. That's why I am showing these photographs, 4 photographs in the 4 year organic basmati rice. Very good basmati rice can be grown organically. Hello? Yes? Hello? 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 Yes? Hello? Yes? I am audible? Yes, audible. You are audible, sir. Please go ahead. Yes, sir. So the basmati rice, these are the photographs which very good basmati rice can be grown. Not only the basmati rice, even the chickpea, wheat, this intercropping with the soybean of rice, potato, all these can be grown very good. Very good crop is showing here. So how to manage, how we can get the very good crop organically, that we are going to be discussed. Organic farming, it's a holistic approach. If we are entering into the field, we have to think of all these things. If you see compost, crops, cropping system, monitoring of disease, economic, market return, market कहाँ से कहाँ पे है, न्यूट्रिएंट का क्या हमारे पास सोर्सेज है, all these things ये हमें सोचना चाहिए. We have to think of that, and if we are entering into the field, we have to think all the aspect of production. क्रॉप्स कौन सी लें, क्रॉपिंग सिस्टम कौन सी लें, कौन सा हमारे पास सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट सोर्सेज क्या क्या है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर क्या हम ले सकते हैं. और इसके साथ साथ अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, कैटल रखते हैं, क्योंकि कैटल एक सोर्स होता है, ऑर्गेनिक सोर्स होता है. सो
that will be much better rather than the only single organic crop going. So start from first one. If we are thinking of organic or organic crop, organic production, so first we have to think this healthy seed and seedlings. The seed must be taken from the good source or organic source, and seed should be treated before sowing in either of nursery or of in the nursery for rice, या कोई और भी क्रॉप अगर लेते हैं तो उसको भी सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट से ही सारे इससे जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, जो डिजीज हैं, उन पे रोक लगती है। इसके अलावा जो एयर बॉर्न अगर बाद में फोलियर एप्लीकेशन भी ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का करते हैं तो उससे बाद में जो है जो डिजीज लगती है वो भी डिजीज बहुत कम लगती है। इसके अलावा अगर सीडलिंग जहाँ पे हम उगाते हैं, चाहे वो राइस की सीडलिंग हो या वेजिटेबल की सीडलिंग हो, दैट इफ वी आर सोलराइजिंग दैट प्लॉट, so the seedling will be very good. And here we are showing here the differences between the solarized and non-solarized plot. In the solarized plot, seedling is very nice, seedling is there, and even in Uttarakhand, in the area of Haldwani and other areas, where the farmers, they are taking the vegetable crop, they are solarizing the area which they are going for the seedling. So farmers के लिए भी मैं ये कहता हूँ, जहाँ पे वो सीडलिंग उगाना चाहते हैं, जो नर्सरी है उनकी, चाहे वो धान की नर्सरी हो, चाहे वो वेजिटेबल की नर्सरी हो, उसको सोलराइज्ड, ये इसमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेते हैं और इस पॉलीथीन को लगभग 30 दिन सॉइल को पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। बट ये ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल चारों तरफ से ये एयर टाइट होना चाहिए। क्या हेलो it's okay, it's okay now please. So solarization is one of the very good aspect. Then we have to monitor the soil fertility. Soil fertility is very important, and all three aspects of the soil fertility we organic farming में हम इसको कहते हैं physical fertility, chemical fertility and biological fertility. It is not the physical, chemical and biological component of the soil. It's a physical, chemical and biological fertility of the soil. So we have to manage all these aspects of the soil, because all these in organic farming, this is very much linked. If the biological activity will be there, then the chemical activity will be more. If the biological activity is totally dependent on the physical activity of the soil. So in the organic farming, we used to say the physical, chemical and biological fertility. All these physical, chemical and biological fertility must be monitored regularly. Then the first aspect comes nutrient management. It's very important. Nutrient पोषक तत्व प्रबंधन ये ऑर्गेनिक में बहुत ही जरूरी है। अगर पोषक तत्व प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाया तो प्रोडक्टिविटी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और प्रोडक्शन हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। किसानों के लिए भी ये हम कहते हैं कि सबसे पहला इंतजाम ये करें कि किस तरह से हम पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये जनरल कॉन्सेप्ट है फीड द सॉइल टू फीड द प्लांट। पहले हम सॉइल को फीड करते हैं, सॉइल इसके बाद प्लांट को फीड करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। होलिस्टिक अप्रोच है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट रिजर्वायर ये हम डेवलप करते हैं, so that the biological, physical, chemical, all these property must be maintained properly. Then सबसे important है temporal nutrient demand of the crop. क्रॉप की समय समय पर क्या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, टेम्पोरल न्यूट्रिएंट डिमांड, और उस टेम्पोरल न्यूट्रिएंट डिमांड को कैसे आप फुलफिल करेंगे, कौन से न्यूट्रिएंट सोर्स को फुलफिल करेंगे। ऑर्गेनिक में यहीं पे पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, यहीं पे साइंस है, बहुत सारी साइंस है। साइंस एंड एक्सपीरियंस बोथ टुगेदर, वो बोथ
both together, then we can manage the nutrients properly. Out of that, the CN ratio of the source, what CN ratio we are taking? Mineralization rate, क्योंकि soil temporal and nutrient demand of the crop, that must be known. हमें टेम्पोरल न्यूट्रिएंट समय समय कितना न्यूट्रिएंट चाहिए और क्या सोर्स हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक का, वो सोर्स न्यूट्रिएंट को सप्लाई करे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई एंड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कब हम न्यूट्रिएंट को अप्लाई करें, कौन से न्यूट्रिएंट सोर्स है और सोर्स को हम कब अप्लाई करें. क्योंकि जनरली किसानों के यहाँ हमने देखा है किसान गर्मियों में कंपोस्ट को डाल देते हैं फील्ड में और उसको फील्ड में मिलाते नहीं. जब उसको फील्ड में मिलाते नहीं तो वो जो है ऊपर ही पड़ा रहता है, उसमें मॉइस्चर लॉस हो जाता है और न्यूट्रिएंट की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है. सो ये किसानों के लिए विशेष रूप से है कि जब भी आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, जब भी आप सॉइल में मिलाएं, सॉइल में डालें, जब भी उसको तुरंत सॉइल में मिला दें, जब भी खेत में ले जाएं तुरंत सॉइल में मिला दें. और 4R स्टीवर्डशिप जो एक कहते हैं 4R होना चाहिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए. राइट सोर्स, क्या सोर्स हम ले रहे हैं, राइट रेट, किस रेट से हम डाल रहे हैं, सो दैट द कोप अप द न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ द क्रॉप. और सोर्स क्या ले रहे हैं, किस, बिकॉज द सीजन वाइज सोर्स विल आल्सो बी चेंज. से फर्दर अगर कंपोस्ट है और थोड़ा सा सड़ा कम है, नॉट वेल डिकम्पोज कंपोस्ट इज देयर, देन दैट कैन बी यूज इन द खरीफ सीजन और रेनी सीजन. बट विंटर सीजन में चूंकि मिनरलाइजेशन रेट बहुत कम होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उस समय जो भी सोर्स लें उसका CN रेशियो कम हो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम हो. से फॉर द बर्मी कंपोस्ट लें या कंपोस्ट जो इन्वेस्ट किया हुआ कंपोस्ट लें, उसको लेना चाहिए. राइट टाइम, कब अप्लाई करें, बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत सारे फार्मर मैंने देखा है, किसानों के यहाँ भी दे अप्लाई जस्ट 1 month 2 month बिफोर द क्रॉप रेजिंग. लेकिन ये अगर सीजन खरीफ सीजन है सो दैट शुड बी अप्लाइड इमीडिएट 2 or 3 days बिफोर द क्रॉप, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. And if the winter season is there, then it should be applied 15 to 20 or 1 month before the taking the crop. Then the right place. So incorporation of this organic manure, that is also very important. Then we have to also think of nutrient losses, because if we see the mineralization process, a lot of nutrient अगर organic में भी हम करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं. मिनरलाइजेशन अगर लो CN रेशियो का हमेशा लेते हैं तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो लॉसेस बहुत ज्यादा होता है. इवन वोलेटिलाइजेशन लॉसेस भी ज्यादा होता है. इसके अलावा अगर आप देखें तो फार्म लेवल पे भी जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, जनरली फार्मर उसको ढेर लगा देते हैं, ढेरों में भी काफी ढेर से भी लॉस होता है और मिट्टी में प्रॉपर न मिलाएं तब भी लॉस होता है. सो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. और केमिकल फर्टिलिटी, मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल फर्टिलिटी, that means the availability of the nutrient in the soil, that must be taken care of. ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी केमिकल फर्टिलिटी के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट. फसल को न्यूट्रिएंट कब अवेलेबल हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है. अगर हम न्यूट्रिएंट सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स अभी तक एज पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले मोर देन 1 decade से कर रहा हूं यहाँ पे पंतनगर में, और हमारा नेटवर्क प्रोजेक्ट भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का. सो अगर हम सोर्स की बात करें तो बेस्ट सोर्स हमारा सेस्बेनिया ग्रीन मैन्योर जो है वो बेस्ट सोर्स है ऑर्गेनिक के लिए. और क्योंकि ये केवल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ही नहीं है, इसका स्मूथनिंग इफेक्ट भी होता है और ये जो है इसका ये आपका नॉन होस्ट भी होता है. इसमें कोई किसी भी तरह के कोई भी इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं. और इसके अलावा ये निमेटिसाइड का भी फंजीसाइडल इम्पैक्ट भी होता है. इसका असर होता है कि जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा फंजीसाइड वगैरह फंगल अटैक भी थोड़ा कम होता है वहाँ पे.
Then compost and making of the compost. Compost for the organic farming and compost for the chemical farming, there is difference between these two compost, because organic farming, hello, I'm audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Sometimes it looks like कहीं ऐसा तो नहीं पूरा कट गया हो. नहीं, you are clearly visible and audible. Yeah. So, sir, compost for the making compost for organic farming and compost for conventional system is quite different. So, compost should be fortified before use in the field. इसको कंपोस्ट की गुणवत्ता को, अगर किसान भाई लोग जो सुन रहे हो, कंपोस्ट की गुणवत्ता को हमेशा बढ़ा के तब जाके उसको यूज करना चाहिए. अगर जिस मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो, मिट्टी किसान भाई लोग इनके लिए विशेष रूप से है, मिट्टी की जांच करवा लें. अगर फास्फोरस की कमी हो तो उसमें कंपोस्ट में के साथ राक फास्फेट परमिसिबल है, राक फास्फेट उसमें डाल दें. अगर राक कंपोस्ट फास्फोरस की कमी नहीं है तो कंपोस्ट को पहले जो है वो 30 दिन के लिए गर्म अवस्था जो होती है उसको थर्मोफिलिक फेज कहते हैं, वो गर्म अवस्था में, इसका मतलब ये है पिट को भर दें, भर के ऊपर से ढक दें, बिल्कुल प्लास्टर कर दें, सो दैट इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें जो रोगाणु, जो रोग लगने वाले कीटाणु होंगे या जीवाणु होंगे वो भी मर जाएंगे. उसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो खरपतवार के बीज होते हैं वो बीज भी खत्म हो जाते हैं. तो कंपोस्ट को सीधे उस तरह से ढेर में न लगाएं, पहले पिट में डाल दें. पिट में डालने के बाद उसको 30 दिन तक के लिए उसको ढक दें, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थर्मोफिलिक फेज आ जाएगा 30 दिन तक. फिर इसके बाद उसको दूसरे उसमें पलट के, चाहे उसमें राक फास्फेट मिला दें, चाहे उसमें उसका वर्मी कंपोस्ट बना लें, चाहे उसका कोई भी कंपोस्ट आप इनरिच करके, जो इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तमाम आजकल, उनको डाल के या कोई भी बायो फर्टिलाइजर डाल के कंपोस्ट को बना ले. और कंपोस्ट फिर 30 से 40 दिन में कंपोस्ट दूसरे पिट में, जो थर्मोफिलिक फेज के बाद वो बन जाएगा, फिर उसको तीसरे पिट में डाल के और उसमें उसको फोर्टिफाइड कर लें कंपोस्ट को बायो इनोकुलेंट से, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे सीडोमोनास हो, चाहे इन दोनों का मिक्सचर हो. इसको बायो इनोकुलेंट को कम से कम खेत में यूज करने से पहले 10 दिन पहले फोर्टिफाइड कर लेना चाहिए. बायो इनोकुलेंट वो होता है जो कि प्लांट को डिजीज से भी रोकता है. इसके अलावा ये बहुत तरह के एक्टिविटी कंपोस्ट को करके कंपोस्ट की गुणवत्ता को भी बढ़ा देते हैं. तो कंपोस्ट सीधे न यूज करके ये फोर्टिफाइड करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ा के तब जाके यूज करना चाहिए. क्योंकि ये जो मल्टीपर्पज माइक्रोबियल स्ट्रेंस होते हैं, से फॉर द फास्फोरस सोल्यूबलाइजर और सीडोमोनास है, ये आपका मल्टीपर्पज है. इनको यूज करने से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट को सोल्यूबलाइज करते हैं, न्यूट्रिएंट को भी सोल्यूबलाइज करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी, और साथ साथ जो कंपोस्ट है वो कंपोस्ट को अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो उनको भी सड़ा देते हैं. क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक में ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, केवल ऑर्गेनिक ही नहीं, आजकल तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे एग्रीकल्चर में, प्रमोट द राइजोस्फेरिक एक्टिविटी. इवन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी इस पे चल रहा है कि राइजोस्फेरिक एक्टिविटी प्लांट की किस तरह से इनहेंस किया जाए. ऑर्गेनिक में ये बहुत जरूरी है. अगर राइजोस्फेरिक एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाएगा ठीक से, न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा नहीं. अगर न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी. सो दैट वी हैव टू आल्सो कंसंट्रेट, वी हैव टू आल्सो सी द राइजोस्फेरिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट. सो राइजोस्फेरिक एक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड बाय दिस यूज ऑफ मल्टीपर्पज माइक्रोबियल स्ट्रेन, either through the fortification or directly seed treatment or directly application into the soil. Then ये बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारे स्टेट हैं जो जिसपे कि बायो फर्टिलाइजर पे बहुत सब्सिडी देते हैं. इन बायो फर्टिलाइजर को कंपोस्ट बनाते समय ही यूज कर लें. जब थर्मोफिलिक फेज से कंपोस्ट पास हो जाए इसके बाद इन बायो फर्टिलाइजर को कंपोस्ट में मिला दें.
उससे क्या होगा कि कंपोस्ट की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, और जो बायो फर्टिलाइजर अलग से आपको यूज करना होता है वो बायो फर्टिलाइजर अलग से यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बायो फर्टिलाइजर दैट कैन बी यूज्ड विद द fortification of compost along with the compost that can be also used. Azolla is also one of the very good source for the rice, as well as azolla composting can also be done. एजोला का भी चाहे धान में आप सीधे उपयोग कर सकते हैं, चाहे कंपोस्ट के साथ इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक में बहुत सारे लिक्विड मैन्योर हैं, हालांकि आजकल तो बहुत लोग पंचगव्य बहुत तरीके से बनाने लगे हैं, लेकिन पंचगव्य जो है वो 5 प्रोडक्ट, गाय के 5 प्रोडक्ट को लेके, गाय के 5 चीजों के लेके बनाया जाता है। मेन पंचगव्य उसी के नाम है, और ये जो पंचगव्य है इसका 2 से 3% छिड़काव करने पे पंचगव्य, कभी किसी अगर फार्मर को कोई जरूरत हो तो हम लास्ट में अपना नंबर भी दे देंगे, वो फार्मर हमें फोन करके किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना हो, चाहे फार्मर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, दे कैन टेक देम. So the Panchagavya that can be used, also 3% of Panchagavya, this not only provide the nutrient source, liquid nutrient source, they are also having the very good enzymatic activity, very good plant, they work as a plant growth promoter, they enhance the metabolic function of the plant. Cow urine, it's also one of the liquid manure. Then the vermi-leachates and vermi-wash, these can also be used as a source of nutrient and as a source of plant growth promoters. एक हमने ये फोटोग्राफ मैं लिया था, आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, वहाँ पे हमने लिया था, ये ऑर्गेनिक फार्म है और ये पूरे कंपोस्ट को स्लरी बना लेते हैं. ऑल काउ डंग and compost they mix here in big tanks and they are directly pouring to the plant, crop plants. So इस तरह से भी स्लरी बना के, अगर इतना बड़ा सेटअप ना हो तो छोटे छोटे जैसे स्लरी, तो बायोगैस स्लरी जो निकलती है उसका भी स्लरी बना के और डायरेक्टली खेत में यूज किया जा सकता है. इन नटसेल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और सॉइल को पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले सॉइल बिल्डअप होना बहुत जरूरी होता है. और उसमें ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एज पर माय एक्सपीरियंस, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.8% या 0.75 मीन हायर साइड में हमेशा होना चाहिए. अवेलेबल एन भी बढ़ा के इसको मोर देन 4 kg, अवेलेबल पी भी मोर देन 25 kg, अवेलेबल की मोर देन 300 kg एंड अवेलेबल एस. So if we are able to manage the soil at this level, we will harvest crop not less than the any conventional system. और इसके लिए हमने ये यहाँ एक्सपीरियंस्ड है, ये मेरा इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक सोर्सेस, केवल एक सोर्स यूज नहीं करना चाहिए. जहाँ पे संभव है ग्रीन मैन्योर अगर 1 साल 2 साल करते हैं तो 2-3 साल के बाद अगर रेगुलर ग्रीन मैन्योर करते हैं तो बासमती राइस ओनली कैन बी टेकन विद द यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर. इसके अलावा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं. इसके अलावा FYM, देन FYM के साथ वर्मी कंपोस्ट, कुछ मात्रा FYM इक्विवेलेंट टू नाइट्रोजन. देखिए एक चीज, लेट मी क्लियर वन थिंग, इफ वी आर एबल टू मैनेज द नाइट्रोजन डिमांड ऑफ द क्रॉप, वी विल एबल टू मैनेज ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. So first of all, we have to apply nutrient as per the equivalent nitrogen demand of the crop. Then the FYM, vermicompost, enriched compost, and neem cake. Neem cake is also a very good source of nutrient, as well as this also the soil enhances the soil activity and protect the plant from the nematodes, sometimes termites. If slowly, if every year you are using that neem cake, so termite problem that can also be overcome. So अगर जहाँ पे आपका टर्माइट की प्रॉब्लम है, किसान भाइयों के लिए भी मैं बताता हूँ कि जहाँ दीमक की समस्या है वहाँ अगर नीमेक्स या नीम के अगर यूज करते हैं 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, तो धीरे धीरे 1-2 साल में वहाँ से जो टर्माइट है टर्माइट वहाँ से भाग जाएंगे और वो निमेटोड की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी. ये स्लोगन है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी गुड फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर.
सो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्म पे बायोडाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप that can be maintained, that must be maintained there. This is the photograph of my field, chickpea plus coriander, rice plus pigeon pea, rice plus soybean, and vegetable pea plus coriander. All these intercropping, they not only they promote, they not only give the total productivity, total monetary return more, even they also protect the some insects, protect the plant from some insects also, because this coriander works as a trap crop. Then the weed management, that's a very much problematic in organic farming. So as I told, if we are entering into the field, अगर हम खेत में जाते हैं तो हमें सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, केवल उत्पादकता पे नहीं। उत्पादन अच्छा हो, वीड मैनेजमेंट किस तरह से हो, और खरपतवार प्रबंधन कहने का मतलब किस तरह से हो, रोग न लगे, हमारे कीड़े न लगे, ये पहले से ही सारी व्यवस्था करके हमें चलना चाहिए, और ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। इट्स ओके, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो? Yes, you are audible, sir, please. So then stale bed preparation, that means before going to the field preparation, you just irrigate the field, and then the seed of weed will be get germinated. Then stale, that shallow plowing should be there after 15 to 20 days. That's known as stale bed. स्टेल बेड कहने का मतलब यह है कि पहले से आप पानी थोड़ा सा लगा देंगे तो खरपतवार जम जाएगा, और उसको फिर हल्की ऊपर सिर्फ सैलो जुताई, हल्की जुताई कर दें तो वो खरपतवार खत्म हो जाएगा। इसके बाद फसल को ग्रो करें। सेस्पेनिया जो है ग्रीन मैन्योर, इससे भी अगर आप इंकॉर्पोरेट करते हैं तो इसका स्मूथनिंग इफेक्ट होता है। इससे भी अगर राइस है तो बहुत अच्छी पडलिंग करने से भी वीड जो है बहुत कम होता है। वेरी गुड। फीड प्रिपरेशन इस तरह से करें, क्रॉपिंग सिस्टम इस तरह से एडाप्ट करें जिससे कि वीड क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करते रहें, और ज्यादातर मैनुअल वीडिंग पे न जाके मैकेनिकल वीडिंग, जैसे कि आप इसमें फोटोग्राफ में देख रहे हैं, कोनो वीडर से राइस में हम मैकेनिकल वीडिंग करते हैं। सो दैट्स, इसके लिए क्रॉप ज्योमेट्री थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। धान को हम जनरली 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा धान में 25 सेंटीमीटर रो टू रो, जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो 25 बाई उसका 25 का आधा कर देते हैं 12.5, तो 25 मीटर के रो टू रो में इस पे कम से कम 2 बार कोनो बीडर चल जाता है, और एक बार हाथ से उखाड़ लें बीड्स को तो राइस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है राइस में। इसके अलावा जो हम क्रॉप लेते हैं वो बिगरस क्रॉप लेनी चाहिए। अच्छी क्रॉप अगर होगी तो बीज को अपने आप ही सप्रेस कर देगी। और एक किस तरह से है मल्चिंग पे, मल्च पे हमने मैं ये फोटोग्राफ यहाँ भी, हमारे यहाँ भी वेजिटेबल्स को ऐसे इस तरह से मल्च पे ग्रो करते हैं। और आपको बताऊं, मैं गया था, स्पेशली किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ कि पूरे इंडोनेशिया में जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं वो इस तरह से मल्च पे उगाई जाती है, और इसमें पानी की भी काफी बचत होती है। 1/4 1/5 पानी केवल देना पड़ता है, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं तो 1/10 ही पानी देना पड़ता है। न खरपतवार की भी समस्या नहीं होती है, और इसके नीचे जो कंपोस्ट डालते हैं, अगर कंपोस्ट थोड़ा कम भी सड़ा होता है तो वो पूरा सड़ जाता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए ऑर्गेनिक में, फीड द वाटर नॉट टू फीड द वीड्स, मतलब फीड द वाटर टू द क्रॉप नॉट टू द वीड। कहने का मतलब यह है पानी सिर्फ फसल को दीजिए, और वीड जो है खरपतवार है उसको पानी न दें। इसमें आप ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल काम करता है। तो इस तरह से मैकेनिकल वीडिंग 1 या 2 बार हाथ से उखाड़ना, मल्चिंग करना, स्टेल बेड करना, इस तरह से वीड समस्या से बचा जा सकता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर कंपोस्ट बढ़िया सड़ा नहीं होगा और थर्मोफिलिक फेज से पास नहीं होगा तो वो जो कंपोस्ट है
उसमें वीट की प्रॉब्लम आएगी, खरपतवार समस्या आएगी उसमें. So compost must be passes through the thermophilic phase before this decomposition, so that the weed seed will destroy. As I told, each and every step of organic production system is very much interlinked. अगर हम वीड मैनेजमेंट भी करते हैं, वीड मैनेजमेंट के लिए भी सोचना हमें शुरू से पड़ेगा, कितना प्लाविंग करें, किस तरह से करें, कितना हम उस स्टेल बेड किस तरह से बनाएं, किस तरह से करें. डिजीज के लिए भी हर एक चीज के लिए हर एक स्टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है ऑर्गेनिक सिस्टम में. तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कंपोस्ट भी बना रहे हैं, ये दिमाग में पहले से होना चाहिए कि हमें वीड भी, हमें डिजीज भी खत्म करना है, हमें वीड की भी, खरपतवार की भी समस्या खत्म करनी है, और हमारे फसल में कीड़े भी न लगे. तो इस तरह से बड़ा ही इंटरलिंक्ड होता है ऑर्गेनिक सिस्टम. अब अगर हम डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, जैसे कि आदमियों में भी है, जानवरों में भी है, वही हाल फसलों में भी है. बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर है तो वो डिजीज है. सो ऑर्गेनिक में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी 2-3 साल बाद नहीं होती है. जैसा कि आजकल अगर देखें, नीचे फोटोग्राफ है, ऑर्गेनिक डायरेक्ट सीडेड राइस एंड इनऑर्गेनिक डायरेक्ट सीडेड राइस. इनऑर्गेनिक डायरेक्ट सीडेड राइस में कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, और आजकल डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई की बात करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी आयरन और जिंक की आती है. लेकिन अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो 2-3 साल के बाद ऑर्गेनिक सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए डेफिशिएंसी नहीं आती. तो कहने का मतलब ये है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक से कर रहे हैं, वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपकी डिजीज की समस्या कम आती है. बिकॉज देयर इज अ mechanism of organic matter mediated disease suppression system is there. Induced systemic resistance आती है, एंटीबायोसिस है, माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन है, पैथोजेंस, their development is more in organic soil, microbiostasis है, destruction of pathogens, competition for the root infection. If all these things can be managed very well if the soil is having the organic matter rich. So that means organic matter rich soil में disease infestation already बहुत कम होता है. So far so disease management के लिए it's written has said it's a seed treatment, soil and foliar application of Pseudomonas fluorescens and Trichoderma. ये बहुत जरूरी होता है. सीड को ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास से ट्रीट करना, और सॉइल में एप्लीकेशन ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का थ्रू इनरिचमेंट ऑफ द कंपोस्ट के थ्रू सॉइल में अप्लाई करें. और इन्हीं दोनों के मिक्सचर का 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं फसलों पे, तो फसलों पे डिजीज की समस्या बहुत कम आती है. और कभी भी, जैसे ये समस्या अक्सर धान में आती है कि पानी कंटिन्यूअस लगाए रहते हैं. एक जनरल मिथ है धान के लिए कि पानी हमेशा लगा रहना चाहिए. हमेशा पानी नहीं लगा रहना चाहिए. जब भी कोई डिजीज या इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, अगर आप देखते हैं, तो पानी को निकाल देना चाहिए था, धान के, स्पेशली धान के खेत से. तो किसी भी फसल में लगातार पानी बनाए रखना, चाहे धान हो चाहे गन्ना हो, स्पेशली धान में, किसान भाई लोगों के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं धान का भी वैज्ञानिक, यहाँ धान भी मैं देखता हूँ, तो लगातार पानी नहीं बनाए रखना चाहिए. इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं धान में. तो जब भी कभी कोई रोग लगता है या कीड़े लगते हैं, तो हमेशा पानी को निकाल देना चाहिए. इसके अलावा दिस मस्टर्ड ऑयल केक और अदर लीव्स ऑफ द नीम केक, ऑल दीज केक्स आर देयर, दे आर हैविंग द एंटी निमेटोडल प्रॉपर्टीज. सो जैसा कि मैंने बताया, अगर नीम केक का कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो इससे भी निमेटोड की प्रॉब्लम, और भी केक्स हैं, these cakes can be used for the control of nematodes. As far as insect control, the summer plowing is very good. Then the pheromone trap. Summer plowing here, if you see a lot of birds are there, they are taking the pupa of the, because the hibernating stage
almost all the insects, they make the pupa and go into the soil. So if the summer plowing is there, then the pupa will be, ये कीड़े जो है ये सारी चिड़िया कीड़े ले लेते हैं किसान भाइयों के लिए भी, खेत को ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. As I in the introduction it has told I am CGM of farm, Chief General Manager of farm. So a farm is Pantnagar farm is 6,000 acre land. So if you anybody will come here and see the almost all the land has been summer plowed. कोई भी field हमारी खाली नहीं है, पूरा 6,000 एकड़ आपको गर्मी की जुताई से हुआ पड़ा हुआ है और इससे सॉइल को अपने आप ही थोड़ा सा सोलाइजेशन हो जाता है. इसके अलावा कीड़े के लिए बेस्ट सोर्स है काउ यूरिन फोर्टिफाइड विद नीम लीफ या और नीम ऑयल. गौमूत्र ले लें, गौमूत्र में लगभग 10 लीटर गौमूत्र में 1 किलो नीम ऑयल, नीम की पत्ती और 1 लीटर नीम ऑयल. नीम की पत्ती भी उसमें डाल दें, 2-3 किलो ऐसे हरी नीम की पत्ती और 1 लीटर नीम ऑयल डाल दें उसमें और इसका लेके लगभग 10% के हिसाब से छिड़कते रहें और 15 दिन के अंतराल पे हमेशा छिड़कते रहना चाहिए. तो इससे जो है इंसेक्ट नहीं आता है, ये वर्क करता है रिपेलेंट एज ए रिपेलेंट. और इसके अलावा दिस आल्सो काउ यूरिन आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एनहांसेस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. राइस के लिए स्पेशली किलिंग ऑफ द राइस स्टेम बोरर हमेशा सुबह के टाइम पर अगर देखें तो फ्लैग लीफ के ऊपर वाली लीफ पे, टॉप मोस्ट लीफ पे बैठा मिलता है. तो एक आदमी करके उसके हाथ में ग्लव्स पहना के अगर एडल्ट को मार देंगे तो एक एडल्ट लगभग 250 से 300 एग्स देता है, अंडे देते हैं. तो एक को मारने से 250-300 प्लांट बचाया जा सकता है. देन इज ऑर्गेनिक सस्टेनेबल. ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्या जैविक खेती सस्टेनेबल है कि नहीं है. इट्स माय एक्सपीरियंस, आई एम गिविंग यू द एक्सपीरियंस ऑफ व्हिच आई हैव गेन्ड हियर एट पन्तनगर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से सस्टेनेबल है. अगर मुझसे पूछें तो आई विल से यस, इट्स वेरी मच सस्टेनेबल in all the aspects in which I have taken this productivity, soil sustainability, ecological sustainability, economic sustainability, all these things I have taken. So first of all, if you see the productivity, I am audible? Hello? Hello? You are audible, sir. Yes, yes, sir. So if you see the productivity first, सो अगर राइस की बात करें तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी 1-2 साल कम होता है, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है. लेकिन व्हीट में 4-5 साल तक प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होती है. बट अगर पल्सेज लें, कोई भी पल्स लें तो इनकी प्रोडक्टिविटी हमने ये 3 कंपेयर किया है, ऑर्गेनिक, इंटीग्रेटेड एंड इनऑर्गेनिक सिस्टम. ब्लू इज ऑर्गेनिक सिस्टम. अगर हम इनका लगभग ये 10-12 साल का डेटा है, मूविंग एवरेज है 3 ईयर का. अगर हम देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि पल्सेज में किसी भी पल्स क्रॉप आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रोडक्शन घटता नहीं है. केवल सीरियल में प्रोडक्शन थोड़ा सा, धान में बहुत कम घटता है लेकिन गेहूं में ज्यादा प्रोडक्शन घटता है. अगर हम टोटल सिस्टम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये आप अगर देखेंगे तो 2005 से मूविंग एवरेज लिया गया है 16-17 तक, लगभग 10 ईयर का डेटा है. ये सिस्टम प्रोडक्टिविटी लगभग सबकी, तीनों सिस्टम की लगभग एक जैसी ही होती है. इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक की थोड़ा ज्यादा है, केमिकल की थोड़ी कम है. बट अगर नेट रिटर्न हम देखें, चूंकि ऑर्गेनिक में वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू एनहांस द प्रीमियम प्राइस 25% मोर, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है ऑर्गेनिक के, मैंने भी देखा है कि 25% या 50% से लेके और 200% तक, समटाइम 300% तक ऑर्गेनिक कमोडिटी की प्रीमियम प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है. सो वी हैव डिसाइडेड इन आवर ग्रुप मीटिंग, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट 25% अगर हम प्रीमियम प्राइस रखते हैं तो नेट रिटर्न हमेशा हमारा ऑर्गेनिक में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड एंड इनऑर्गेनिक सिस्टम. अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में बल्क डेंसिटी कम हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और 60 सेंटीमीटर तक. एंड देयर इज आल्सो ए बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. ऑर्गेनिक कार्बन इज की टू द ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन. जैव जीवांश पदार्थ
किसान भाइयों मैं आपको बताऊं, जीवांश पदार्थ जिसको कहते हैं, ये कुंजी है पूरे प्रोडक्शन सिस्टम की. दिस इज द की ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम, and this must be, organic matter must be maintained, and up to the 60 centimeter we have observed here. So organic soil, blue color organic soil is rich in the labile carbon and total carbon, and carbon sequestration is very much high in organic system as compared to the inorganic system. And whether if organic system, whether we are cereal system we are taking, or we are taking cereal first system, because we are taking here the green manure crop and huge quantity of organic manure, if the organic manure we are applying, so system का कोई response विशेष नहीं है, but organic matter buildup is very much high in organic soil. Not only the organic matter buildup, organic जीवांश पदार्थ बहुत ज्यादा, water holding capacity. अगर आप लोग कहीं आप एक reference भी देखे होंगे, especially for the students, those who are seeing here, the reference European Union, they have decided that rather than for the saving of water conservation, we have to increase the organic matter content, and they have decided that if we are able to enhance the 0.1% of organic carbon, we'll able to save the 10 liter of water per meter square area. Because of this water holding capacity is very much high in organic soil. It's near about just double. And not only water holding capacity, all these four pillars are the organic soil. In within the organic, SRI and direct seeded rice is there, and these two is the organic control, means the farmers practice, and chemical, because farmers they are not able to apply the sufficient quantity of compost. फार्मर के यहाँ, किसानों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि कंपोस्ट ठीक से बनाते नहीं हैं और ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाते. इसलिए मैंने किसानों के यहाँ, किसानों का भी एक सॉइल लिया, डेटा लिया, तो उनके यहाँ भी अगर मैंने देखा है इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी ये ऑर्गेनिक सॉइल में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक केमिकल सॉइल. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, we will not able to apply the water in the rice. So rice inorganic soil में अगर देखें यहाँ तो एक क्रैक फॉर्मेशन, दरारें पड़ जाती है. किसान भाई जो भी होंगे, किसान भाई इससे भली बात परिचित होंगे. अगर किसी कारण से 4-6 दिन पानी नहीं दे पाते हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सॉइल है, जो आप केमिकल खेती कर रहे हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं. लेकिन जो जैविक खेती करेंगे उसमें कतई दरारें आपकी नहीं फटेगी. क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉइल में. इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी बिल्डअप, धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी बिल्डअप, फास्फोरस बिल्डअप काफी हो जाता है सॉइल में आफ्टर 10 ईयर. सो और उसके अलावा ये देखा हमने कि माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये तो एक्सपेक्टेड है, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी, जीवाणुओं की संख्या इनकी ज्यादा होती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है. जो सॉइल एंजाइमेटिक, डिहाइड्रोजिनेज, एसिड, एल्कलाइन, फॉस्फेटेज, ऑल दीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज वेरी हाई इन ऑर्गेनिक सॉइल एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक सॉइल दैट वी हैव अक्रॉस द क्रॉपिंग सिस्टम वी हैव ऑब्जर्व. अगर फूड क्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा फूड क्वालिटी, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक पीएचडी स्कॉलर हमारे उसने फूड क्वालिटी पे रिसर्च किया. एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें ज्यादा होते हैं. सबसे मेन ये है कि टॉक्सिक केमिकल रेजिड्यू नहीं होता है और रेजिड्यू फ्री होता है. इसके साथ साथ इसको बोलते हैं ऑर्गेनोलेक्टिक टेस्ट. अगर किसी भी, आज भी है, अगर गांव में मैं जाता हूं, मैं भी गांव से ही हूं, और हमने ये ऑब्जर्व किया है, लोग जो अपने खेती करते हैं, जो नॉन सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो अपने लिए ग्रो करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोलेक्टिक जो टेस्ट, अगर उसको एरोमा, अपीयरेंस, टेक्सचर, टेस्ट, ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी, सो मैंने भी बासमती राइस का ये सब ऑर्गेनोलेक्टिक टेस्ट करा है. सो दैट्स हाई in organic system as compared to the inorganic system.
Then the iron content, there are the several organic sources are there. In last one, the chemical control is there. Last two is the chemical control is there. In almost all the organic system, different varieties are there, different years are there. So iron content is very much high. Then the zinc content is also, this has been done by one of the physiology PhD student. Zinc content is also high in organic produces, basically organic basmati rice. Then the antioxidant. So antioxidant with different type of antioxidants are there. ये कि किसान भाइयों के लिए बता दें कि इसकी एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फसलों को खुद भी किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता देती है फसल में। और अगर ये हम लोग खाते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है इसमें, मतलब कैंसर डिजीज से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, कैंसर डिजीज बहुत कम होता है अगर इस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाए जाए। तो हमने ये देखा एकदम टॉप मोस्ट इज द ग्रीन मैन्योर FIM यूज ऑफ दिस ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक, देन द सम मिक्सचर इज देयर, बट द रेड वन इज द केमिकल वन, सबसे नीचे केमिकल है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इसमें ज्यादा होता है, सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द केमिकल वन। लास्ट वाला केमिकल है और ऊपर वाला बिल्कुल ऑर्गेनिक है। साथ साथ कैटालेज, ये भी एक एंजाइम है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि एंटीऑक्सीडेंट कुल जो कि पौधों को इनसे कैंसर से मतलब डिजीज से लड़ने के लिए बचाते हैं, किसान भाइयों के लिए बता दूं, और विच हैज द एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इन द ह्यूमन बीइंग आल्सो, अगर इसका प्रोडक्ट हम खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ज्यादा होता है। अगर हम एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिक में कम होता है। एनर्जी इक्विवेलेंट, हमने सारी चीजों का एक रेफरेंस है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी में, वहां से हमने लिया, स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, और वहां से हमने पूरा एनर्जी कैलकुलेशन किया। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, किसान भाइयों को भी पता होगा कि मैं भी यहाँ एक्सपीरियंस हूँ। अगर हम राइस लेते हैं, राइस के बाद सॉइल को प्लाउ करते हैं या हैरो चलाते हैं, केवल 2 हैरो में सॉइल बिल्कुल रेडी हो जाती है। एंड आई हैव विजिटेड फॉर इधर आपके सेवरल एरिया ऑफ हिली एरिया जहां अभी भी लकड़ी का वुडन प्लाउ, दे आर यूजिंग वुडन प्लाउ। किसान भाइयों के लिए भी बता दूं, वो लकड़ी का प्लाउ यूज करते हैं इसलिए कि मिट्टी जो है बहुत हल्की हो जाती है, एंड अगर हैरोइंग कम होगी तो डीजल कंजम्पशन कम होगा। अगर डीजल कंजम्पशन कम होगा तो CO2, बिकॉज 1 kg डीजल से लगभग 3 kg CO2 निकलता है, तो CO2 emission भी कम हो जाएगा। Either it can be total energy consumption in organic farming system that will be less, either it can be correlate with the ecology, correlate with the environment, correlate with the soil also. Then methane emission, one of the students they have done, definitely ऑर्गेनिक सोर्स जहां यूज करते हैं वहां मीथेन, शुरू में मीथेन इमिशन ज्यादा होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, because wherever the carbon will be there, the carbon emission will be more, definitely. But one thing, if we are using green manure is very fast carbon sequester crop. They take the carbon, so it's a matter of not only methane flux, it's a matter of carbon cycle. If we see the carbon cycle or carbon bursting, we work on the carbon bursting. So the positive bursting will always be there besides the methane emission. And slowly, the next year we have also observed, this last one is chemical one, the differences of methane emission is very less. Then in the long term, organic and inorganic soil, we have taken at flowering stage methane emission. One of the students, he came from with the even self-monitoring machine, came from the Switzerland. He monitored it at our farm, Pamnagar farm. He monitored and he told that the methane emission is less. So he told that all the differences said that organic, wherever organic is there, methane emission will be very high. But later on in the long run, methane emission is also less, because actually methane emissions occurs
if the soil is continuous submergence in condition. So organic soil will not be a continuous submergence in condition. After long run, if 10-year soil is there, after 5 years, 6 years, if you see the organic matter are being used every year. So the organic soil will not be a submergence condition, means anaerobic condition will not be there. Even water holding capacity will be there, but the water stagnation will not be there. So if the anaerobic condition, if anaerobic condition will not be there, then the methogenic bacteria formation, their proliferation will not be there, then the methane emission will also be less. So in the long run, methane emission will also be less. So, but the nitrous oxide, if you see, the nitrous oxide emission in the chemical soil is very high as compared to different type of organic soil. So in the chemical soil, with nitrous oxide emission is very high. So I have calculated it in CO2 equivalent global warming potential, methane as well as nitrous oxide. So the total global warming potential is very high in the chemical soil, where the chemical continuous flooding is there as compared to the different organic soil, either a BSR, SRI system of rice, or basically we have calculated it during the rice season. Then one of my experiences also at the farmers field. We have consulted this because there are more than 2,000 farmers are there in my touch, and we have one of the collaborative project with the Nature Biofood. Nature Biofood is the sister concern organization of Dawat Rice. So we have surveyed that the total revenue generation in organic is more. Total cost, because they have not calculated the cost of in organic farming. किसान भाइयों के लिए भी मैं एक चीज बता दूं कि ऑर्गेनिक में जो कुछ आप यूज करें वो अपने फार्म पे डेवलप करके यूज करें. We should not dependent on the market, because if we will dependent on market, then the price will be increased. Say for the take the example of, अगर आप किसान भाइयों को बताएं, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पे वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मिनिमम 5 रुपए किलो मिलेगा. अगर आप खुद बनाएंगे तो ये ज्यादा 1 रुपए, पूरा सब कुछ लेके 1 रुपए किलो से ज्यादा नहीं पड़ेगा. और इसलिए फार्मर ये बोले, फार्मर का सर्वे ये कहता है कि टोटल कास्ट हमारी कम हो गई. और अगर हम टोटल कास्ट इक्विवेलेंट भी लेके चलते हैं तब भी जो प्रीमियम प्राइस जो फार्मर ने पाया वो हमने ये देखा प्लस 63%, 150% तक हायर प्रीमियम प्राइस उनको मिला. उनके प्रोडक्ट का बासमती राइस और जो भी प्रोडक्ट उन्होंने उगाया उसका प्रीमियम प्राइस ज्यादा मिला. इसलिए उनकी जो मार्जिन रही, नेट रिटर्न जो रहा किसानों के यहाँ, वो मार्जिन काफी ज्यादा रही बासमती इसमें ऑर्गेनिक बासमती में एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हाइब्रिड या कोई भी क्रॉप लिया. तो यहाँ भी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपके मार्जिन ज्यादा रहेंगे, बशर्ते ये कि सिस्टमेटिकली किया जाए ऑर्गेनिक. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बाजार से कोई भी चीज खरीद के न जाए. ज्यादा बायो इनोकुलेंट ये सब बहुत सस्ता मिलता है, 100-200 की चीजें मिलती हैं, इनको खरीदें. अदरवाइज कोई भी चीज, हर एक चीज आप अपने घर पे बना सकते हैं. चाहे पंचगव्य बना सकते हैं, आप घर पे बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, गौमूत्र लेके उस पे नीम की पत्तियां डाल के, नीम ऑयल भी न लें खरीदें, उसमें नीम की पत्तियां डाल दें, तो आपको ऐसे आप कीड़े से भी बचा सकते हैं. तो हर एक चीज भरसक आप किसान भाइयों के लिए मैं बताता हूँ, वो भरसक ये प्रयास करें कि अपने फार्म पे ही सारी चीजों का उत्पादन करें और ये फिर जाके उसको खेत में अपने डालें. फिर भी हमारे यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं. एक तो ये है कि लेस फियर टू लेस, एक धारणा बनी हुई है कि ऑर्गेनिक में लेस प्रोडक्टिविटी, हालांकि 1-2 साल होती है ट्रांजिट पीरियड में, थोड़ा सा लेस प्रोडक्टिविटी होती है. और दूसरा है साइंटिफिक वैलिडेशन, स्पेशली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ये साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक वैलिडेशन दैट मस्ट बी देयर, स्पेशली nutrient mineralization process and microbial activity during the decomposition and microbial activity mineralization process into the soil. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
तीसरा ये है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। कुछ पैथोजेंस काफी दिन तक रहते हैं उसमें, तो इसके लिए पेस्ट एंड डिजीज, इसके प्रॉपर मैनेजमेंट एस्पेक्ट, सॉइल से लेके और क्रॉप हार्वेस्ट तक किस तरह से करें, ये एक चैलेंज है थोड़ा सा, और इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टाइज की जरूरत, बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। वो सारी चीजें इसमें प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। दूसरा ये एक ऑर्गेनिक एक्सपर्टाइज। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऑर्गेनिक के फेवर में भी बोलते हैं, बहुत लोग अगेंस्ट, काफी लोग हैं ऑर्गेनिक के। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत लोग जो फेवर में भी बोलते हैं ना, उनको भी ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं। किसान भाइयों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो, ऑर्गेनिक नीड्स a lot of science is there in organic farming system. Organic needs always expertise first. ऑर्गेनिक में बहुत ही एक्सपर्टाइज, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही साइंटिफिक बैक स्टॉपिंग के साथ नॉलेज की जरूरत होती है। किसान भाइयों के लिए भी बता दूं, तो जो आप लोग भी जो किसान भाई लोग जो भी जैविक करें, तो जैविक साइंटिस्ट या जैविक एक्सपर्टाइज जो है उनसे राय लेते रहें, और स्टेप बाय स्टेप एक एक पग पे आप राय लेते रहें, और उनके साथ साइंटिफिक साइंस के साथ अगर लेके चलेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो सकती है। ऑर्गेनिक इनपुट एंड देयर क्वालिटी स्टोरेज, क्वालिटी की बात है। ऑर्गेनिक क्वालिटी कुछ कभी कभी हो जाता है कि कुछ इनपुट इस तरह से हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिस तरह से कंपोस्ट जैसे शहरी एरिया में है उसको भी रिस्ट्रिक्टेड है, उन सबको नहीं यूज करना चाहिए। इनपुट क्वालिटी और स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। मार्केट अनसर्टेनिटी कभी कभी रहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अदरवाइज समटाइम मार्केट बहुत अच्छा रहता है। वर्ल्ड में द यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट, 40% टोटल मार्केट ऑर्गेनिक के यूएस में ही होती है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो। Thank you so much, sir. It was a very informative lecture. Now, the house is open for the discussion. Sir, we have received some of the questions from the participants. Yeah. Am I audible to you, sir? You are audible, but the picture is not there. Sorry? Yeah. Sir, there are some questions from the participants. Yeah. Please, go ahead. The first question is Dr. Meenakshi Sanwal. Yeah. Her question is, how to prepare soil for organic vegetable and fruit cultivation? Actually, the soil, it should be, as I told, that very first, soil must have organic carbon. Try to organic matter maintain organic carbon more than 8%. So if you are planning for the vegetable growing or planning for the new orchard under organic farming system, so before taking the vegetable or before taking the orchard, the soil must be, the best source is green manure. It should be green manuring should be there, because the green manure first, before taking the any vegetable crop or taking new orchard, you go for the green manuring first, and green manure that provides at least 25 to 30 ton of green biomass. So start from the green manuring, then the compost, then all the other several compost are there. So if the new vegetable, organic vegetable field, if you are going for preparation of new organic vegetable field or new organic orchard, so start from the green manure first. So soil buildup will be there from that. And in the mid-season, any legume crop can be taken in between the orchard, and legume crop can be incorporated in that one. So soil, slowly soil buildup will be there. Yes, please. Thank you, sir. The next question is from Mr. Pankaj Rathore. Yeah. His question is, how to market organic compost? As I told, organic farming, all the resources that must be generated their own farm, organic farm. Don't depend on market. If anybody is thinking that I can purchase compost, I can purchase vermicompost and
by the purchasing, by the buying compost and vermicompost, will do the organic farming, will not succeed it. So I never suggest anyone to go for the buying the compost or buying the vermicompost. Only bioinoculant can be buying, all the compost preparations should be their own farm. Otherwise, it would not be remunerative, never be remunerative. Yes. All right, sir. One more question is from Mr. Amit Kumar. Yeah. His question is, how can organic farming fulfill the food grain requirements of the people of our country in the era of climate change? Yeah, actually, if you see, as I told very early, that I am not suggesting, even we are not suggesting the whole country go for the organic. Some strategies go for organic with the some strategies. The strategy is that the rain-fed area, low fertilizer use area, and in the rain-fed and low fertilizer use area, if you see the food grain productivity is very less. And that productivity can be obtained very well, because in the rain-fed area, the problem is water holding capacity, problem is water. So if doing the organic in the rain-fed area, water holding capacity will be increased. So the productivity in the rain-fed area, that will be increased. So rather than the high productive area, you should take some low productive area where the productivity is very less, and 30% of the country's area is where the tribal areas is there. There by default organic production system is there. If give them the backstopping of the scientific backstopping, so their productivity is already very less, where the by default organic is there. If give them the scientific backstopping, their productivity will be boosted up very well. So in this area, and the slowly there is chances of only 2 year, 1 or 2 year less productivity. Otherwise, very good productivity can be, as I shown very first 3-4 photograph. Almost all the crops they are equal or more than productive than the conventional system. So if the scientific backstopping, experience, knowledge, nutrient requirement of the crop, nutrient supply system, whatever you are giving there, what is the source of nutrient, all these things, if you are managing well, there will be very less chance of low productivity. So it can be sustainable very well. And as regard for the climate change, everybody knows the answer is organic matter. If organic matter will be there into the soil, it will cope up with all things, even the temperature, fluctuations of the temperature, very high rainfall, rain-fed, if the rain is not there, all these things. So answer is the organic matter content, and organic matter buildup will be there in organic soil. So it will cope up with the climatic change scenario also. Yeah. Sir, one question actually has been shared by Dr. Jialal Gupta and Madam Uttara Singh. The questions are actually common. They want to know that how they will identify the organic products in the market. Actually, everyone is selling with the organic tag. But how to identify that whether this product is organic or it is not? Actually, this so is there any way to identify? This is still challenge, but the organic product will be certified by the organic certifier. Either this PGS system is there, either through the PGS system or through the external certifier are there. If the product is certified by the certifier, that is the product is organic. Otherwise, by visually we can't say that this one is the organic, this one is inorganic, because the certifier, if the export is there, so the certifier agency all get the this testing with all these commodity, organic commodity, testing with whether it is residue free or not. So the organic certifier give the certification and give the certificate that this product is organic product. And whatever packed product is there, their organic logo will be there, certified by the different certifying agencies. Otherwise, visually we can't. All right, sir. All right. Sir, again, one question has been raised by Mr. Amit Kumar. He's saying that infestation of Gandhi bug in rice crop starts at the milking stage
how to manage it under the organic condition. As I told this How to in manage our it under the organic condition. As I told in organic system, direct killing system is not there. Only repellent system is there. If we are using cow urine with neem leaf, fortified with the neem leaf, so this Gandhi bug will not be sit there. So if the cow urine will be spread. So cow urine is the continuous, and this is the single solution for almost all the crops, for almost all, against all the insects, because in organic system, the insect-wise management system is not there, crop-wise management system is not there. So cow urine works very well as a repellent, and as I told, that it should be applied 15 days interval, 4 to 5 spray must be there, whether any insect is there or not, but it must be applied. All right, all right. Sir, thank you so much, sir. I can see on the WhatsApp group that there are many messages have been came. So many messages have been posted regarding the excellent presentation. We are very much thankful to you, sir. And since I can see some of the people are continuously typing, so maybe if any question comes, I shall. You can give what time answer on the WhatsApp group. Yeah. You can send that message question on WhatsApp. I will reply it. Yeah, you are connected on this WhatsApp group. So many messages are still coming, and people are typing. So, ladies and gentlemen, any question right now is there? If any question right now? No, not now, sir. Okay. Not now. Yeah, messages of good wishes are there. Okay, thank you. Thank you. I'm very much thankful to Dr. D.K. Singh, sir, for the excellent presentation he made on the organic practices. And since we are well on time, finishing well on time, our first session, and I can see that it's a very successful session. So, thank you all. Again, I invite all you participants at 4 p.m. in the evening. We will be having Padma Shri awardee Shri Bharat Bhushan Tyagi जी, वो बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती का एक सार्थक विकल्प पर. आप सभी को मैं पुनः आमंत्रित करूंगा वहां पे. आपकी उपस्थिति वहां वांछित रहेगी. धन्यवाद आप सभी का. तो इस सेशन से हम विदा लेते हैं. फिर हम 4 बजे साथ होंगे. धन्यवाद. Hello. Hello. Okay, sir. Yes, sir. Sir, we will meet at 3:30. Actually, we have to start in 3:30. Okay. Mute to all, yes. Okay. 3:30. All the participants hereby requested that please meet at 3:30 p.m.